Hello and welcome to our YouTube channel. We have started a series of video lectures on molecular biology. We have started a very specific portion of prokaryotic DNA replication. In previous video tutorial, we have discussed about initiation. We have discussed about the introduction of prokaryotic DNA replication. Plus हमने डिस्कस किया था हाउ दिस प्रोसेस इनिशिएट इज द डायग्राम शोन हियर कि कैसे इनिशिएट होता है ये प्रोसेस. नाउ आज हम नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे एंड दैट इज एलोंगेशन. वो कौन सा है? एलोंगेशन. कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपका डीएनए है प्रोटीन में आना है. कहां पे? रिकॉग्निशन रेप्लिकेशन रिकॉग्निशन साइट पे अटैच होना है. देन आपका बी एंड सी कॉम्प्लेक्स जो है आपका जिसने हेलिकेज की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसने आकर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे कहां पे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड होना है. कहां पे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड होना है. अब ये DNA B plus C complex, it will basically unwind the DNA and open the DNA and will create a very specific structure in the DNA. उसको हम क्या कहते हैं? replication bubble कहते हैं. Now replication bubble को अगर हम open कर दें, खोल के रख दें, so it will look like this. यहाँ पे I've shown a circular plasmid of bacteria. कोई सा भी बैक्टीरिया, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एस्केरिशा कोलाई, उसका हमने प्लाज्मिड लिया. अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से कंप्लीटली मैंने सिर्फ रेप्लिकेशन फोर्क को ही और रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोर्क को ही उठा लिया है. नाउ रेप्लिकेशन एलोंगेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हाउ द एलोंगेशन स्टार्ट? सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज, वी ऑल नो कि दिस डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली perform the activity of elongation, but the problem is that कि DNA polymerase जो है DNA polymerase and cannot start de novo synthesis de novo synthesis में कि ये खुद से नया DNA स्ट्रैंड नहीं बना सकता. It need what? An active 3' hydroxyl group. इसके लिए एक्टिव 3' hydroxyl group की जरूरत है. So who perform and who does this and who provide this active 3' hydroxyl group? सबसे पहले यहाँ पे another protein जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन DNA प्रोटीन G कहते हैं और DNA G प्रोटीन which is basically what? RNA primase enzyme. ये क्या है? RNA primase enzyme. It will come, it will recruit here, as shown here. This is basically RNA primase enzyme. RNA primase enzyme will recruit here and it will attach here the RNA nucleotides here. ये यहाँ पे क्या करेगा? It will attach here RNA short strand of RNA nucleotides. इस short strand of RNA nucleotide को हम क्या कहते हैं? Primer कहते हैं. Now the primer is here. Here is 5' and here is your 3'. Here is your 3'. Now after 3' active hydroxyl group is now here. Now DNA polymerase 3 will come and will recruit here and will start synthesizing the strand. इस strand को ये continuously क्या करेगा? synthesize करेगा. ठीक है? Here the strand will synthesize in this direction. इस direction पे ये synthesize होगा. Now the problem is ये strand जो है ये तो synthesize हो रहा है. What is the problem now? जो दूसरा strand है, जो complementary strand है इसने भी simultaneously synthesize होना है. लेकिन problem is कि DNA polymerase जो है, DNA polymerase 3, it is unidirectional. ये एक ही डायरेक्शन में like in this direction 5' to 3' synthesis of this occur. लेकिन यहाँ पे जो दूसरा strand है it is the complementary strand of this one. So ये इसका क्या है? बिल्कुल opposite है. At a time this DNA polymerase will synthesize these both strands, but problem is कि ये क्या है? Opposite to this one. So now to cover this problem, ये DNA का जो दूसरा स्ट्रैंड है as usually we assume कि प्राइमर ने कहीं यहाँ पे अटैच होना है, कहीं यहाँ पे अटैच होना है.
नहीं, प्राइमर ने यहां पे अटैच नहीं होना। जो आपका दूसरा स्ट्रैंड है ये बेसिकली क्या बना देते हैं, लूप बना देते हैं, लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, लाइक एज शोन हियर इन दिस, लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इसकी डायरेक्शनलिटी जो है ये चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस लूप परमिशन, इट मूव और इट ये जो है अंदर की तरफ जो है ना लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। नाउ दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की वजह से इसका क्या हो जाता है, इसकी जो डायरेक्शनलिटी है ये चेंज हो जाती है। Because of this change directionality, now this RNA polymerase can synthesize. Now here is the 5 prime. Somewhere like here is the 5 prime. Now the primer will attach here. अब यहाँ से this RNA polymerase is moving and following this helicase enzyme, which is basically a DNA B and C complex. DNA B and C complex. इसको फॉलो कर रहा है। नाउ दिस स्ट्रैंड इज इन द इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ दिस वन, ये इसकी क्या है, इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ दिस वन। सो ये क्या करेगा, नाउ डीएनए पॉलीमरेज 3 विल बी एबल टू एड न्यूक्लियोटाइड हियर, यहां पे आपका एक प्राइमर अटैच हो जाता है, हियर इज वन प्राइमर, अगेन लाइक डीएनए प्रोटीन G or DNA G protein will recruit here and will attach primer here. और यहाँ पे इसको क्या करेगा, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं, प्राइमर will attach here, और यहाँ से फिर सिंथेसिस ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रैंड भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, when the synthesis reach like here, लूप के एंड तक पहुंच जाए, तो यहाँ पे द रेप्लिकेशन halts, आपका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स अगेन ड्यू टू द डायरेक्शनलिटी प्रॉब्लम। ये क्या हो जाता है, योर रेप्लिकेशन प्रोसेस विल halt, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक फ्रेगमेंट बन गया, अगेन दिस विल कंटिन्यू टू सिंथेसाइज, दिस स्ट्रैंड विल कंटिन्यू टू सिंथेसाइज, लेकिन यहाँ पे आपका ये स्ट्रैंड अगेन देयर विल बी अनदर लूप, दूसरा लूप बनेगा, अगेन देयर विल बी एडिशन ऑफ अनदर प्राइमर, दूसरा प्राइमर यहाँ पे ऐड होगा, अगेन देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ अनदर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब इन फ्रेगमेंटेड सेक्शंस में सेकंड स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, जो दूसरा स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड आपका कंटिन्यूअसली यहाँ पे एडिशन कर रहा है, आपका डीएनए पॉलीमरेज ऐड हियर आपके साथ ये क्या कर रहा है एडिंग, और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है, ओपन हो रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज देन फॉलोइंग दिस हेलिकेज और डीएनए बी एंड सी कॉम्प्लेक्स, और ये क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ द वन स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है इसकी सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं। उन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, उन स्पेशल उसको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नाउ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, that's how the synthesis of more DNA continues until and unless the next phase of the prokaryotic DNA replication or replication of DNA reach, and that is termination. लेकिन यहाँ पे another problem, and which is a topological problem यहाँ पे create हो जाता है। कौन सा problem? Topological problem. And what is that topological problem basically? The topological problem is that as the helicase enzyme as the helicase enzyme move forward, तो यहाँ पे एक topological problem आता है। What is that topological problem? I am giving you example of this wire. Let's suppose this wire is your DNA. यहाँ पे आपका क्या है? This is your DNA, which is basically आपका DNA जो है coil like this, लेकिन as this helicase enzyme move forward, यहाँ पे आपके जो DNA है it will tightly coil, और उस टाइट कॉइलिंग को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। इट में स्टॉप योर हेलिकेज एंजाइम और इट में स्लो डाउन योर replication process.
सो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव वेरी स्पेसिफिक एंजाइम, यहां वी हैव वेरी स्पेसिफिक एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं टोपोआइसोमरेजेस एंड गायरेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम्स? टोपोआइसोमरेजेस एंड गायरेज एंजाइम। गायरेज इज बेसिकली अ टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज क्या करते हैं? इट प्रोड्यूस कट लाइक हियर, लाइक यहां पे क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? कट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, निक्स, कट प्रोड्यूस कर देते हैं, निक्स स्पेसिस। जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स है, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इस फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को ये क्या कर देते हैं? कट उसको ब्रेक कर देते हैं और यहां पे निक प्रोड्यूस कर देते हैं। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? निक कहते हैं, निक कहते हैं। नाउ दिस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस निक आपका जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन ड्यू आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ दिस निक यहां पर निक प्रोड्यूस हो गया एंड इफ दिस निक रिमेन्स हियर, ये यहां पे रहे तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम विल बी कि यहां से आगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है ये प्रोसीड नहीं करेगा। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यहां पे निक प्रोड्यूस कर दिया किसने? टोपोआइसोमरेजेस एंड गायरेज एंजाइम्स ने। अब इस निक को रीफिल करने के लिए अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड लाइगेज एंजाइम। Ligase enzyme will fill this nick and will resume the normal DNA structure और आपका DNA synthesis जो है, replication of DNA जो है, it will continue, elongation of DNA will continue. Now, how this DNA is यहाँ पे biochemical reactions जो से है कि कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, सॉरी नॉट पॉलीपेप्टाइड चेन, कैसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है, पॉलीमराइजेशन कैसे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे, हाउ दिस बायोकेमिकल रिएक्शन हैपेंस। सो लेट मी रिमूव दिस वन। We all know the structure of a single nucleotide. यहाँ पे you have a ribose sugar, you have a phosphate group, you have a nitrogenous base here carbon number 2, carbon number 3, you have hydroxyl group, अब यहाँ पे here is an RNA न्यूक्लियोटाइड। अब इसके साथ किसने बाइंड होना है? नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द फर्स्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड में बाइंड होना है, या मिडिल में से कहीं से आप लोग उठा ले, कोई सा भी उठा ले, उसके दरमियान फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, आइदर इट इज आरएनए न्यूक्लियोटाइड और आइदर इट इज डीएनए न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज उन सब के दरमियान सेम ही होता है। नाउ अनदर न्यूक्लियोटाइड लाइक दिस इज अ रेड वन इज अ न्यू न्यूक्लियोटाइड, यहां पे आपका क्या है? राइबोस शुगर, यहाँ पे आपका नाइट्रोजेनियस बेस है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है? PO4 ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 एंड दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। अब इन दोनों के दरमियान बायोकेमिकली रिएक्शन कैसे होता है? द न्यूक्लियोटाइड ऑफ इस न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 का फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को हम बेसिकली क्या करते हैं? वी कॉल दिस बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इसी तरह दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इन द फर्स्ट स्ट्रैंड, इस सेकंड स्ट्रैंड में भी कंटिन्यू ही रहता है लेकिन फ्रेगमेंटेड फॉर्म में, and what are that fragments? Okazaki fragments. So this was all about elongation of the DNA replication. DNA replication की elongation के बारे में हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन, कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो टर्मिनेट होता है, हाउ दिस प्रोसेस टर्मिनेट्स एंड हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट्स। टर्मिनेशन का बेसिकली मतलब है कि हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट्स। सो इंशाल्लाह होप सो आप लोगों ने ये वाला लेक्चर एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन। थैंक यू।